बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहिनी मोहन कांजीलालेर आसानसोल शाखा। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 46 स्थित मास्टरपाड़ा इस्लामपुर में मंदिर के पास क्लब निर्माण को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई। रविवार की रात हुई इस झड़प में एक युवक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि क्लब निर्माण को लेकर इलाके के सीनियर और जूनियर सदस्यों के बीच विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन रविवार की रात ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें सिद्धार्थ गोस्वामी और एक और शख्स को चोटें आई हैं। इस मामले में क्लब निर्माण के खिलाफ मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ खड़े दिखे मस्जिद कमेटी के लोग। रविवार की रात हुए तनाव के बारे में बताते हुए सिद्धार्थ गोस्वामी ने कहा कि मंदिर के पास क्लब बनाने का विरोध करने के कारण उन्हें कुछ युवकों ने बीती रात घेर लिया और पिटाई कर दी। जो है এখন কিছু বাইরে থেকে ছেলে এসে আরম্ভ করেছে এখানে ওরা ক্লাব তৈরি করবে। আমাদের এখানে ক্লাব প্রয়োজন নেই, যেহেতু আর আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কখনো ছিল না। আমাদের এখান থেকে প্রত্যেকটা ঘর 21টা বাড়ি মিলে সাইন করেছে, আমাদের ক্লাব বা ভান্ডারা ঘর দরকার নেই। আজকে যখন আমি বাইরে থেকে ঘরে ফিরছি আমাকে 20টা ছেলে মিলে ঘিরলো, একজন আমাকে মারলো। আমার ঘর নেওয়া খুব কাছে ছিল, আমার বাবা দরজা খুলেছে, আমি ঢুকে যেতে পেরেছি, নালে আজকে আমাকে আরো মারতো। আর আমার ইসলামপুরের বন্ধুরা না এলে আজকে আমাকে ঘরে ঢুকেও মারতে পারতো। इस मामले पर शिखा घटक ने कहा कि क्लब निर्माण को लेकर वो 2 बार क्षेत्र के सीनियर और जूनियर सदस्यों के साथ बैठक कर चुकी है और मामले के समाधान का तरीका भी बताया है, लेकिन अचानक आधी रात को ये सब हो गया। আমি ওদেরকে বললাম যে ভিড়ের মধ্যে বাচ্চা বাচ্চা সব ছেলে তোরা ঠিক করে নে, করে বসে পড়। ওরা বললো যে দিদি আমাদের ক্লাবটা ভেঙে দিচ্ছে। আমি ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে কি করবি না করবি নিজের টাকাটা দিয়ে একটা 3 জনের ক্লাবের ছেলের অ্যাকাউন্ট খোল, তারপর তোরা কি করবি মনের সব ঠিক কর, তারপরে ওখানে একটা ক্লাব তখন বানা নিজেদের মতো করে, কিন্তু ঝুট ঝামেলার মধ্যে কেউ যাবি না। আমাকে ওরা কথা দিয়ে গেল পরশুদিন, তা হ্যাঁ ঠিক আছে দিদি আমরা এরকম করে নেবো। কারণ হঠাৎ ভাবে কালকে শুনছি যে জুনিয়র আর সিনিয়রদের মধ্যে বিশাল ঝামেলা। আমি যখন শুনেছি বেশ রাত, তাহলে আমি যাই স্পটে, তখন আমাকে পুলিশ থানা থেকে ফোন করবে, দিদি মারপিট হচ্ছে, তো স্পটে আমরা চলে এসেছি, আপনার আসার দরকার নেই, আমরা রয়েছি। শিকাদি বললো, শিকাদির ঘরে গিয়ে ডেকে মিটিং করা হলো। শিকাদি ওখানে আমাদেরকে বললো যে এখানে একটা কমিটি করে দেওয়া হবে, হ্যাঁ তোমরা টাকাটা দিয়েছো, ওখানে একটা ক্লাব করা হবে। আমি ওইখানে উঠে চলে আসি, তারপর থেকে আমি জানি না, কালকে হঠাৎ দেখলাম এখানে ওরা এসে পুজো আচ্ছা করছে। রাত্রিবেলাতে দেখলাম চেঁচামেচি করেছিল, ওদেরই মধ্যে কেউ একজন নিয়ে গালাগালি হচ্ছিল, কিন্তু আমরা বেরোইনি, বেরোলে অশান্তি হবে ওই জন্য বেরোইনি। আজকে ঝামেলা হয়ে গেছে, আজকে ঝামেলাটা হয়েছে, আজকে ওরা পুজো আচ্ছা করছিল, সবকিছু মন্দিরে পুজো হয়েছে, সবই হয়েছে। হঠাৎ করে এই ছেলেটা হচ্ছে আমাদের বাবু, আমাদের ক্লাব এই পাড়ার মধ্যে ক্লাবের মধ্যে, ওকে আজকে ও ওখানে যাচ্ছে, ওকে ধরে অ্যাটাক করেছে। সেজে উঠেছে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 জিটি রোড, অপোজিট অফ ভেটরান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসদের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোल शोरूम, 116 जीटी रोड, ऑपोजिट ऑफ वेटरन पेट्रोल पंप। आसनसोल में जमीन के विवाद से जुड़े कई ऐसे मामले मिल जाएंगे जिनमें से कुछ कानूनी फाइलों में दबे पड़े हैं तो कुछ सियासी दांवपेच का शिकार हो गए। ऐसे 2 मामले आज आसनसोल में देखने को मिले। पहला मामला है आसनसोल के वार्ड नंबर 30 का, जहां एक गली को साजिश के तहत रातों रात दीवार खड़ी कर बंद करने का आरोप स्थानीय पार्षद गोपा हल्दर पर लगा है। स्थानीय 2 परिवारों के बीच जमकर बवाल भी हुआ, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। सोमवार को पार्षद गोपा हल्दर की शिकायत लेकर रेखा गुहा मेयर विधान उपाध्याय के पास पहुंची और मामले को लेकर क्या कहा सुने। 50 বছরের গলি বন্ধ করে মুনমুন মালাকার ওদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাপোর্ট করে গলিটা দখল করে গাঁথি করে দিচ্ছে। গলির বিরুদ্ধে কেস চলছে, 144 করা আছে। তা সত্ত্বেও ওরা ভোর 4টের থেকে বাউন্ডারি ওয়াল তুলতে প্রায় 26টা থেকে 25টা মিস্ত্রি লেবার লাগিয়ে ভোর 4টের থেকে মিস্ত্রি লাগিয়ে ওরা দেয়াল তুলছে, বেআইনি কাজ করছে। এই কাজকে সাপোর্ট করছে গোপারি আমাদের কাউন্সিলর। গলি নিয়ে প্রবলেম আছে, গলিটাতে বলছি 144 আছে। তো আমি ইঞ্জিনিয়ারকে এখন খবরটা পেলাম, ইঞ্জিনিয়ারকে আমি বলেছি দেখে এসে আমাকে রিপোর্টটা দিক, তারপর দেখা যাবে। জায়গাটা দেখে দিতে হবে, কাজ জায়গা আছে, জায়গা ওটাতে মানে রাস্তা বলে আছে, তাহলে ওটা করে দিতে হবে কর্পোরেশন। दूसरा मामला है वार्ड नंबर 28 का,
नगर निगम के पिछले बोर्ड ने रेल पार इकबाल सेतु के पास एक कॉम्पिटेटिव लाइब्रेरी के निर्माण के लिए लगभग 50 लाख रुपए दिए थे। इस राशि से लाइब्रेरी की निचली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर तैयार की गई और फर्स्ट फ्लोर के निर्माण के लिए वर्तमान नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कैसी राजनीति का शिकार हो गई लाइब्रेरी। एक और लाइब्रेरी में किताबों के साथ बच्चे अपने सपनों की उड़ान की तैयारी करेंगे, वहीं लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही एक ऐसे माहौल का सामना करेंगे जो न सिर्फ विद्या का माहौल बिगाड़ने वाला होगा बल्कि लाइब्रेरी के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला होगा। उन्हें अशिक्षा के अंधकार में ढकेलने और उद्दंड तथा असभ्यता की सीख देने वाला होगा, जो बेरोजगारी से अपराध तक का रास्ता दिखाने वाला होगा। इससे पूरे समाज पर एक खतरा मंडराने की संभावना है। कुछ ऐसी बातें कही वार्ड नंबर 28 के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस का ठीकरा फोड़कर कुछ लोग इनलीगल लॉटरी का कारोबार करते हैं, साथ ही जुए और शराब की रोज की व्यवस्था के लिए इस तरह के क्लब बनाए जा रहे हैं। लाइब्रेरी जो है वे प्रीवियस बोर्ड में मेयर साहब ने 50 लाख रुपए देकर के बहुत सारे वार्ड में कॉम्पिटेटिव लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड दिया था, जिसमें वो जगह पर एक पुख्ता लाइब्रेरी बना जिसमें कोई टेंशन का मसला नहीं है। लेकिन मुकम्मल चूंकि नहीं हो पाया, फाउंडेशन में काफी पैसा खर्च हुआ, तो अभी मेयर साहब से हम लोगों ने मुतालबा रखा था। प्रेजेंट मेयर साहब ने कहा कि भाई उसको मुकम्मल करने के लिए जो एस्टिमेट है उसको अलाउ किया, इसके बाद जो खर्च है 15 लाख के करीब वो करके उसको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन आज जो टीएमसी पार्टी ऑफिस कर रहा है नदी के जमीन पे उसके बगल में, तो आज आसनसोल के लोगों को सोचने का जरूरत है कि कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी जिसमें ग्रोन अप लड़कियां सब 11-12 की बच्चियां सब कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आएंगे, बच्चे सब आएंगे, तो वहां अगर बगल में पार्टी ऑफिस ही होना जरूरी है तो ये इस बात का इशारा है कि आपको कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी बनाने का जरूरत नहीं है। वहां पे शराब हो, जुआ हो, डांस हो, झारखंड से लाकर के लॉटरी हो, ये बरकरार रहे। कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी के जरिए मुस्लिम बच्चों को आपके कांधा से कांधा मिला के चलना, उन लोगों को देखना गवारा नहीं है। उसको नहीं होने देने का, बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ सके, आगे नहीं बढ़ सके, मुकाबले में शामिल नहीं हो सके, इसके लिए ये तैयारी। मंत्री तो खुद ही नहीं चाहता है कि अगर मंत्री चाहता कि माइनॉरिटीज का बच्चा पढ़े तो माइनॉरिटीज के आप मंत्री को देखा नहीं कि असेंबली इलेक्शन से पहले रेल पार में कितना पार्टी ऑफिस खोल दिया गया। कोई एक कॉम्पिटेटिव लाइब्रेरी तो नहीं खुला, कोई एक कॉलेज तो नहीं खुला, कोई एक प्राइमरी स्कूल तो नहीं खुला, किसी बच्चे को एजुकेशन देने का जगह तो नहीं बना, लेकिन सैकड़ों की तादाद में पार्टी ऑफिस बन गया। सिर्फ एक माइनॉरिटीज के बच्चे को दूसरे माइनॉरिटीज के बच्चे से लड़ाने का काम किया गया और तमाम तुम लोग लड़ो मरो और हमको फायदा पहुंचाओ, यही पॉलिसी है उनका। ये फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में अब तक बारिश का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से पारा लगातार ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है, उससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी त्रस्त हो गए हैं। हालांकि 19 जून से मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगमन की शुरुआत होने की बात कही गई थी और सोमवार से आसमान में बादल छाए भी रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं, हवन करवाए जा रहे हैं, लेकिन आसनसोल के न्यामतपुर स्थित चपका के रेड लाइट इलाके में प्रकृति से बारिश की विनती के लिए एक अनोखा ही वाकया देखने को मिला। यहाँ पूरी विधि विधान से मेढक और मेढकी की शादी करवाई गई और वो भी पुरोहित की मौजूदगी में। इतना ही नहीं, इस शादी में मंगलवार को भंडारे का भी आयोजन किया गया है। पुराने जमाने में मेढक और मेढकी के मिलन को बारिश का प्रतीक माना जाता था,
जिससे इंद्र देवता खुश होकर धरती पर पानी की बरसात करते थे। इसी धारणा को लेकर चपका के यौन कर्मियों ने ये पहल की ताकि शिल्पांचल इस गर्मी से राहत पाए और तपती धरती को बारिश की बूंदे शांत करे। इस न होने के कारण आज ये इन लोगों ने महिला प्रेसिडेंट चपका स्थानीय जगह बारिश न होने के कारण आज इन लोगों ने मेढक की মানে शादी करवाई गई दोनों जोड़े को। দুটো ব্যাঙ ধরেছে, এরা খুশিতে ব্যাঙের বিয়ে দিচ্ছে। তা বিয়ে দিচ্ছে, কালকে এক ছেলের মা দেহে চেয়েছিল, মানে গঙ্গা সরকারের ছেলে, ও দেহে চেয়েছিল 50,000 টাকা। মেয়ের মা বলছে আমি দিতে পারবো না পয়সা। তা ছেলে আজ ঘুরি নিয়ে চলে গেছে। আজ আদুরি বিবির ছেলের সাথে সাইরা বানুর মেয়ের সাথে এখানে বিয়ে হলো। আমরা পণ্ডিতও দেখেছিলাম, এখানে বিয়েটা হয়ে গেল। কালকে এখানে ভোজ হবে, মানে বউ ভাত। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान कई जगह से हिंसा और बमबाजी की खबरें देखने को मिली, लेकिन सलानपुर एक ऐसा इलाका रहा जहां पंचायत चुनाव में नामांकन करने आए विपक्षी दलों के प्रार्थियों को नामांकन केंद्र में जाने से पहले तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल देकर एवं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर उनका सम्मान किया। नामांकन की तिथि समाप्त हुई और इसके बाद सलानपुर से भी हिंसात्मक खबरें आनी शुरू हो गई और फिर शुरू हुआ प्रार्थियों का नामांकन वापस लेने का सिलसिला, जिसके बाद वासुदेवपुर, बेंजीमारी की 2 सीटें, जेमारी, धुंदाबाद के पंचायत सदस्य और जेमारी पंचायत समिति पद तृणमूल कांग्रेस के खाते में निर्विरोध ही आ गिरे, जिसका जश्न तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सलानपुर ब्लॉक कार्यालय के सामने अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर मनाया। इस मौके पर निर्विरोध जीते गए प्रत्याशियों ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए क्या कहा। আমরা মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি, তার কারণে আজকে আমরা পঞ্চায়েত জিতে এসেছি বাসুদেবপুর জেমারি, তার কারণে আমরা আনন্দে আবির করেছি। আনকন্টেস্টেড। বিরোধীরা কি প্রার্থী দেয়নি? না, বিরোধীরা দেয়নি, বিরোধীরা গেছিল, দিতে পারেনি। যেহেতু আমরা প্রত্যেকের বাড়ির উন্নয়ন করেছি, প্রত্যেকের কাজে লেগেছি, সেই কারণেই বিরোধীরা ওখানে কোনো জায়গা পায়নি। हम लोग बाजूपुर जिमारी ग्राम पंचायत बिना कंटेस्ट करने पर अपना पंचायत जीत गए हम लोग, है ना। कौन से जीते? हम लोग कुल 6 पंचायत सदस्य और 1 पंचायत समिति का सीट जीत चुके हैं। उनका नाम कौन? आपका धुंदाबाद, बौन जिमारी का 2 सीट, आपका जेमारी और आपको वासुदेवपुर और 1 पंचायत समिति हम लोग का जेमारी से जीत गए। आपका नाम? भरतगिरी उपपद। दूसरी ओर नामांकन वापस लेने वाले प्रार्थियों ने ये कहकर बातें टाल दी कि उन्हें इसमें कोई रुचि ही नहीं थी। ইচ্ছা যে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, আমি সেই নিজের মন থেকে পড়াশোনা পড়াশোনা করে আমি দাঁড়াচ্ছিলাম, তো আমার ইন্টারেস্ট নাই, আমি সেই জন্য আজ পরে এখানে উঠে গেলাম। আগে নিজে কোনো অডিও আসছে না? না না, হুমকি এটা তো কেউ দেয় নাই, আমার নিজের ইচ্ছে। কোন দল থেকে? হ্যাঁ, কোন দল থেকে? সিপিএম থেকে। কোনো ডর ভয় চমকা কেউ কিছু করে না। তোমাদের দলীয় নেতা বলছে কি প্রার্থীদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি? না 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 না, সেসব হয়নি, ওসব হয়নি। দলীয় নেতা মিথ্যা কথা বলছে? না, আমাদের ওসব হয়নি। लेकिन वरिष्ठ सीपीएम नेता रंजीत सरकार ने कहा कि सीपीएम प्रार्थियों के घर जाकर उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया करते थे, जिसके बाद सीपीएम प्रार्थियों ने अपने नामांकन वापस लिए और इस वजह से पंचायत सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को निर्विरोध जीत हासिल हुई। কালটাও সময় আছে, প্রশাসন কতটা নিরাপত্তা দিতে পারছে আমাদের ক্যান্ডিডেটদেরকে? বাড়ি বাড়িতে যদি কিছু বাহিনী গিয়ে সব সময় উঠিয়ে নিন, নাহলে 20 তারিখের পরে আপনাদের কে রক্ষা দেবে? এই যে বিষয়গুলো পরিবারের মধ্যে দিচ্ছে, পরিবারের মধ্যে একটা ট্রমাটাইজ করে দিচ্ছে, এই প্রক্রিয়াগুলো এখানে আছে। তথাপি আমরা লড়াইয়ে আছি। দেখি এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আগামীকালটাও আমাদের হাতে আছে। আমরা সমস্ত যারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে, আমাদের এলাকার যারা নেতৃত্ব আছে, তাদের সাথে আমরা পরিকল্পনা করে নিয়ে আগামী। उधर सलानपुर के टीएमसी के दिग्गज नेता भोला सिंह ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि डराना धमकाना ही होता तो पहले दिन से ही नामांकन नहीं करने देते। विरोधी का बोलने का काम है, वो लोग चमकाने। कौन चमका? अगर चमकाते तो हम लोग तो शुरू दिन से ही नॉमिनेशन नहीं करने देते। कहाँ चमकाएं? किसको चमकाएं? कोई प्रमाण है? कौन सा इससे जीते आज? एक तो अभी हम लोग एक तो समिति अनकॉन्टेस्ट हुआ है और बाकी एक तो पंचायत हुआ है। देखा जाए, अपने से आके अगर करेगा आदमी तो करेगा। नॉमिनेशन विड्रॉ कर रहा है, करेगा।